लिंक्डइन ने और सोशल मीडिया ने जेनजीज को ना स्टिग्मेटाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा लगा दिया है। जेनजी है तो यही करेगा, जेनजी है तो यही करेगा। Do you feel they are really entitled, or you think कि ये सिर्फ perception है लोग? They are entitled. I am entitled myself. I'm a Gen Z. Welcome Husna, the Gen Z marketing head at Myco, a straightforward marketing expert, a LinkedIn voice, and the mind leading the Myco marketing team. What's the riskiest thing you have told a boss, and what happened next? 9 to 5 culture is very 2000. Like get over that. Burnout is your personal failure if you're unable to balance between your personal life, between your work life. So I think वो आपके ऊपर है. You always have a choice. You can always say no to things that you don't want to do. ये जानना है कि what is your thought process about job switching? जॉब अगर आपको करनी है स्विच आप करें, 100% करें, बिकॉज कंपनी आपको वो इतना बड़ा जंप नहीं देगी. What workplace rule makes absolutely no sense, or maybe which HR policy you'd like to remove from everywhere? From everywhere, I think attendance. I agree with that. So what's the biggest red flag Gen Z should notice in interviews? हुस्ना कैसी हैं आप? Hi, I'm well. How are you? वेरी गुड. उर्दू बोलनी पड़ेगी आज. ओके, उर्दू बोलनी पड़ेगी. मैं उर्दू बोल रही हूँ, मैंने आपसे इतनी देर उर्दू में बात करी है. Okay, so a lot of people follow you on LinkedIn and also admire you, and so do I, and I want to learn from you. But before that, जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक हो जाए. हिस्ट्री, चाइल्डहुड, वेयर डू यू बिलोंग, पढ़ाई के बाद आपने पहली नौकरी, पहली इंटर्नशिप, quick background. Okay, so yeah, my childhood. About my childhood, I have been born and raised in Karachi. My schooling was from HHS, and my university was IU because of some problems that I told you. I don't know. I'm gonna say them out loud here, but yeah, it was IU. Then I enrolled myself in masters for IUBM. But before I could do my masters, I got a call from Myco. So it was either Myco or masters. I chose Myco. Okay. Yeah, Okay. it was I think April when I got the interview call, and they were like, it's a new company, it's a new startup. Myco back then was nowhere. अच्छा, एक तो जब नया इदारा होता है और आप जॉब स्विचिंग कर, आई मीन स्विचिंग नहीं चले, वो आपकी, आप पहला एक रिस्क ले रहे हैं उस पर, तो डर नहीं लगता कि यार ये तो कहीं है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. यूनिलीवर जैसी कंपनीज होती हैं तो आप बोलते हैं यार आग बंद करके भी मैं कर लूँगी. यार ऑनेस्टली मेरा माइंडसेट शुरू से यही था कि आई एम गोना गो एंड वर्क इन अ स्टार्टअप. उससे पहले भी मैं काफ़ी स्टार्टअप्स में काम कर रही थी. I was acting as a consultant, marketing consultant, business consultant for 2 startups before I said yes to Myco. But like I told you, I was on a 9 months break. I was working from home back then. And when I got the call from Myco, मैंने अभी recently एक post डाला था कि you need to talk to strangers. You need to make conversations with I love that, strangers. yes. Yeah, you must have read that. So that is also how I got the interview call from Myco, because there was this one girl. I just had a conversation with her randomly. I was there for some purpose, uski company mein, and then just hi hello हो गई थोड़ा सा. I am a very extroverted personality myself. तो बस ऐसे ही जिससे भी बैठ जाऊँ बात कर लेती हूँ, तो उससे बस ऐसी हाय हेलो हो गई थी. 2 years later she called me कि I'm hiring for Myco. Would you be interested in that? I was like, yeah, I don't think so. Then she told me कि it's a new startup. वहाँ पे आपको opportunities आपकी ज़्यादा होंगी. आप second hiring होंगी. It's this co-founder in the office, and then you are going to be in the office. So I was like, okay, as long as अच्छी कंपनी होगी. मैंने थोड़ा दुबई में सर्च किया, बट बैक देन माइको वॉज नोवेयर. गूगल पे कहीं थी, इंस्टाग्राम था, बट उसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट नहीं था कि कर क्या रहे हैं माइको, होता क्या है क्या नहीं है. तो मैंने अपनी एचआर को बोला ठीक है मैं तुम्हारे कहने पे चली जाऊंगी माइको, बट 2 months if I don't like the company I'm out of there. ओके. And then अब 3 साल हो गए हैं, पता भी नहीं चला अच्छा, कैसे. आपने कहा कि मैं तो 8-8 9 महीने में स्विच करती थी, यहाँ पे 3 साल हो गए हैं. तो 3 साल. सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस अबाउट जॉब स्विचिंग, एंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू द यंग जनरेशन हु इज वाचिंग यू? यार ऑनेस्टली इफ़ आई से कि नहीं करो जॉब स्विचिंग, तो वो बहुत बायस्ड आंसर होगा, बिकॉज आई हैव बिन स्विचिंग माई जॉब्स लाइक क्रेजी बिफोर आई केम टू माइको. मेरा आप रेज्यूमे देखेंगी, हर जगह मैंने सिर्फ 9 महीने जॉब किया है, एंड देन आई स्विच. न्यू ईयर में नई जगह पे ही मनाती हूँ, ये मेरा रूल है. 2 months आई टेक द ब्रेक,
31st है आज. Yeah. Are you planning to celebrate it somewhere I was else? just telling my colleagues today, dude, like, you know, it's been 3 years. नया साल फिर से आ गया है. मैं 2 साल से सोच रही हूँ I need to switch, but I'm not able to switch because you know the bosses, they're great, the leadership great. आपको इस तरह की leadership, इस तरह का office environment नहीं मिलेगा. I worked with 5 companies before coming to Myco, and I don't think I have found such leaders, such entrepreneurs anywhere else other than Myco. But generically अगर हम देखें the kind of financial growth you get from job switching. Yeah, that is crazy, dude. That is crazy. I swear. जॉब अगर आपको करनी है स्विच आप करें 100% करें बिकॉज कंपनी आपको वो इतना बड़ा जंप नहीं देगी जितना बड़ा आपको एक जॉब स्विच करने पे जंप मिलेगा बट या मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ आप लोग कर सकते हैं 100%. We never know even if you can switch maybe sometimes. आपने कहा कि यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है बट आपने ये कहा कि पिछले इदारों में there was some conflict of interest of yours with some millennials also. Yeah. Right? I mean चले हम millennials generic नहीं करते. बेबी बूमर्स कह सकते हैं हमने लाइक मिलेनियल्स तो खैर थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़े होंगे मुझसे इतना ज़्यादा नहीं बट तो what is the conflict of interest? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यार यही आता है मतलब जैसे आप अभी भी आप देखते हो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि ब्रांड गाइडलाइंस ब्रांड बुक्स देयर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर गाइडलाइंस इवन द कलर्स यू कांट इवन चेंज द स्लाइटेस्ट ऑफ कलर विच इज़ ओके यू नो व्हेन इट कम्स टू लोगोज व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी दैट इज़ ओके बट आई वर्क in the marketing department. I lead the marketing department. I don't want to, you know, do something जो कि हर कोई कर रहा है. मुझे वो काम नहीं करना जो कि इस रूम में बैठे हुए 50 लोग कर रहे हैं. मुझे वो काम करना है जो कि मैं करूँगी और मुझे उसके लिए ही रिकग्निशन मिलेगी. ठीक है, जो काम 50 लोग कर रहे हैं उसके लिए रिकग्निशन लेना मुश्किल है, पर जो काम आप खुद अकेले कर रहे हो उसके लिए रिकग्निशन लेना इतना मुश्किल नहीं है, राइट? तो अगर मेरी टीम में सिर्फ जेंजीज हैं और जेंजीज ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मुझे पता है वो मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे. एंड व्हेन आई टेल यू दैट इज़ द ट्रूथ. आई हैव 25 पीपल इन माई टीम और एक बंदा उसमें से ऐसा नहीं है जो मेरी हाँ में हाँ मिलाता हो. अच्छा, कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है. ठीक है. मेरी असिस्टेंट है निम्रा. शी इज़ देयर टू यू नो लाइक कंट्रोल मी. शी कंट्रोल्स मी. व्हेन आई टेल यू शी कंट्रोल्स मी, शी लिटरली कंट्रोल्स मी. मैंने उसको बोलना है कि निम्रा हमें ये करना, बोलेगी नहीं नहीं करेंगे. And I like that in people. I think it's on me, it's on my leadership, and it's on my bosses also. उन्होंने भी मुझे ये बात सिखाई है कि we should welcome new ideas, we should welcome new creativity. और Gen Zs में सिर्फ यही है. उनके पास new ideas हैं, उनके पास unhinged ideas हैं, उनके पास उनके पास कोई concealer नहीं है. They'll just say it. हाँ. आप उससे अप्रूव करें ना करें वो आपके ऊपर है, बट they'll just say it, they'll just go out and say it. अगर वो उनको पता भी नहीं होगा कंपनी की ब्रांड गाइडलाइन क्या है. I don't think कि मेरी कंपनी में या मेरे जेंजीज की पूरी टीम ने किसी ने भी ब्रांड गाइडलाइन पढ़ी होगी आज तक. And but like see, our social media is growing, Myco is talked about, Myco is everywhere. तो I think एक ये living example है कि you know. I actually wrote one question about, I mean, there are some more questions about Gen Z, but do you feel they are really entitled, or you think कि ये सिर्फ perception है लोगों? They are entitled. I am entitled myself. I'm a Gen Z. I am entitled myself. So they are entitled, but I think in a good way. I think वो एक जो आपका एक institution की एक जो corporate की पूरा environment था, पूरा एक code था, एक policy codes होते थे आपके. I think they're breaking that. They're breaking the barriers. But are they not offering too much? Which is good, isn't it? At the beginning of Who their doesn't like career, too much? I like too much. But at the beginning of their career, where they really need to prove themselves initially, if you haven't proved yourself, if you haven't shown your work, if you haven't really done anything for the company, do you really think कि बिल्कुल शुरू में जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको मिलेगा? कुछ करके दिखा के ही मिलता है ना. हाँ, देखो इसका जवाब ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे सकती हूँ. इन माई 3 years of being the manager, like I told you, I only hire Gen Zs. I don't hire anyone 1 minute older than me because मैं लाइन क्रॉस कर रही हूँ Gen Z की. ठीक है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है. बहुत सारे बच्चे आए हैं, ठीक है, 2 महीने काम किया मेरे साथ. They cannot understand my pace of working. सही है. एंड आई हैड टू फायर दैम. आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज यही बात है, एंटाइटलमेंट तो बहुत ज़्यादा है, सही है, कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है, बट
वो फिर काम भी मैच दिखाओ, नहीं कर पाते काम हैं। भी दिखाओ फिर। हाँ, काम भी दिखाओ ना, मतलब मेरी टीम में जितने भी लोग हैं अभी कराची टीम में मेरी, मुझे ऐसा लगता है अब मैंने सेट बैक कर लिया है, मैं अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको हर बात बताऊं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना ठीक है। है। दे हैव अंडरस्टूड देयर वर्क, दे हैव अंडरस्टूड देयर नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने भी सीखा है, उनको भी पता है, दे नो द बाउंड्री, ठीक है। उनको बाउंड्री लाइन का पता है, उनको पता है कि बॉस है तो हमें बॉस के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है। इवन दो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने बहन भाइयों को भी इतनी इजाज़त दी हुई है खुद से इस तरह बात करने की जिस तरह वो लोग करते हैं। अच्छा। दे आर वेरी चिल विद मी, दे आर वेरी चिल विद मी। Okay. They'll arrange my birthdays, they'll take me to places, I take them to lunches and dinners all the time. Corporate मतलब काम के अलावा हमारे पास बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं करने के, बट फिर भी उनको पता है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। बट अगर किसी कोई भी देखो, ये जेंजी पे नहीं होता है, ये आई थिंक ये आपके खुद के ऊपर होता है। अगर आपको नहीं पता जेनेरिकली भी कि आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, तो वो मिलेनियल भी हो सकता है। आई नो, आई वर्क विद सो मेनी पीपल, सो मेनी women, let's say, they just say whatever they want to say, they don't care, and and not in a nice way, in a belittling way. So it's on person to person. I don't think it's on Gen Zs. I think LinkedIn ने और सोशल मीडिया ने Gen Zs को ना स्टिग्मेटाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा लगा दिया है। Gen Z है तो यही करेगा, Gen Z है तो यही करेगा। I don't think that's the appropriate thing. Okay. So you have become a voice for Gen Z at work. Yeah, rightfully so. What's the most controversial thing you have said online that you still stand by? Yeah, okay. I still get comments on that post. मैंने कहा था एक पोस्ट में कि मुझे लगता है कि anyone who's 30 plus, they should not be a social media manager. You still stand by. I still stand by it. No, because I had the motive behind that post. I was like, dude, if you're 30, do better, do a better job. Like become a strategist. Tell people what to do. You don't have to schedule the post. Like, why are you 30 and course. scheduling the Of post? course, Don't of do course, that. of And it's bad in your career. What are you gonna do when resume पे अच्छा, अपने तो वो लगा बात दिया है? पूरी कन्वे नहीं हुई ना फिर। मैंने कमेंट्स में लोगों को बहुत बार लिख के समझाया है। Everybody thought कि आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पे ही काम मत करो आप। No, I specifically wrote social media manager. अब वो अगर लोगों को परसीव किसी और तरीके से करना है तो वो उनका मसला है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं फिर कंट्रोवर्शियल नहीं है इतना, फिर ठीक हाँ, है। मतलब लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ, उस पर आई थिंक 107 कमेंट्स हैं। मैं आज सुबह ही पढ़ रही थी वो पोस्ट कि इस पे अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, और मैंने लोगों को कमेंट्स में मल्टीपल बार समझाया है कि डूड, इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। लाइक आई फील कि आई एम मैं इसकी क्लिप काट के ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूं हसल पे, एंड देन लेट्स सी व्हाट पीपल से। Yeah, I think people are still gonna come for me because it's very hard for me to make them understand. Okay. I'll go very quick with the questions because I want you to answer all my questions. Yeah, go ahead. Have you ever advised someone to quit instead of adjust? All the time. I am not a supporter of adjustment at all. I don't want people to adjust. You are not comfortable, just go find something else that Okay. suits you better. Okay. Where should Gen Z compromise and where should they never compromise? That's a very good question. Yeah, they should never compromise on their mental health. हाँ. ठीक है, मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो कि मेरे ऑफिस इन्वायरमेंट में तो एटलीस्ट हम बहुत सपोर्ट करते हैं। Okay. So like I have this team member in my team, and she was going through some phase of her life. University के साथ जॉब करना it's not easy at all, और मेरे सारे जितने भी colleagues हैं सब यूनिवर्सिटी के साथ ही जॉब कर रहे हैं। So I just told my boss one day, she's struggling, and he was like, just give her the off, like जितना भी उसको जितने दिन का भी off चाहिए, just give her that. And that's how I learned कि mental health is very important. मैं अपनी mental health को इतना ज़्यादा prioritize नहीं करती हूँ, because I'm a workaholic, I'm a crazy workaholic. My mom says कि the only time that she's not working is when she's sleeping. Other than that, she's working. Okay. So yeah, I Okay. think this is one thing that Gen Z should not ever compromise on, and one thing that they should compromise on is their free will. I think they have a lot of free will, and I think अब उनको पता चल गया है कैसे utilize करनी है अपनी free will. थोड़ा और समझाएं इसको। वो बिल्कुल भी मतलब मेरे बच्चे तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, until unless मैं गुस्से में बोल दूँ कि बस यही होगा। उससे पहले का जो पूरा पीरियड है ना, उस ना तक के आने का, वो उनको फ्री विल है उनको वही करना है जो उनको समझ आ रहा है।
मैंने उनको बोला ईस्ट जाना है वो जाएंगे वेस्ट, अगर उन्हें वेस्ट ही जाना है। तो आई थिंक फ्री विल का थोड़ा अगर कम हम, खैर मैं खुद भी ऐसी हूँ, तो फ्री विल का अगर हम थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट। मतलब दूसरों से भी सीखना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि बस सब मुझे बिल्कुल आता है। सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। Okay, okay. Do outspoken women get labeled difficult and rebellious in personal life too? You are one of those. I am one of those, and when I tell you, most of the people at my workplace, even wherever I've worked before, they have been shit scared of me. They have been shit scared of me. When I tell you that, they have been scared of me. Is that Even good? now they are. That's good. यार पर्सनली मुझे लगता है अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, आप थोड़ा सा भी फ्री करवा लें किसी को, हाँ. तो लोगों को लगता है फ्री पास मिल गया हमें, हाँ. अब तो बात करो जो भी करना है, हाँ. मैसेजेस भेजो, जो भी करना है हाँ. करो। बट आई एम नॉट रिबेलियस, आई एम वेरी आउटस्पोकन, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। So it is considered as rebellious everywhere. आई मीन हाँ, Bosses टू भी ईच करेंगे. देयर ओन। मेरे बॉसेस नहीं करते, मेरे बॉसेस अब 3 साल से काम कर रहे हैं तो उनको पता चल चुका है कि दैट्स ये हाउ शी normal इज। है. बट ये नॉर्मल है, या हाँ. मतलब मेरे लिए मुझे पता है कि मेरे लिंक्डइन पे कैसे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं इनको इवैल्यूएट कर रही होती हूँ। लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, राइट? कभी किसी कमेंट ने आपको डिस्टर्ब किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। और एक दफ़ा नहीं, बहुत बार। अभी थोड़े टाइम, आई थिंक 1 नवंबर की बात है। इट वॉजेंट अ कॉमेंट, इट वॉज एन इंसिडेंट विच इज़ ऑल्सो समहाउ व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर। जब आप अपने आप को सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते ही होते हैं। सो आई वॉज एट आतिफ असलम्स कॉन्सर्ट and I was on the stage being a brand manager. I was supposed to be at the, on the stage. I was supposed to make an announcement about Myco, how you all can download Myco. I was there to distribute the shirts, but the host did not announce my name. Instead, he announced the band Bayan. They came on the stage, and when I went on the stage, they were supposed to come on the stage, but they did not. Instead I went on the stage. सही है. When I went on the stage, people started booing me. Like 30,000 ka crowd. They started booing me. They started, making multiple different noises. क्योंकि वो बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे. Band expect करते, मतलब I'm not gonna blame them, but Wasn't against you. I was there on the stage, so of course I took it on myself. But it's not that कि वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। बुरा क्या था कि लोगों ने वीडियोस बना ली, लोगों ने they started posting it online, and then they started writing she's very rude, she is rebellious, she is this, she's that. इनका attitude ही ख़त्म नहीं होता, इनका ये ख़त्म नहीं होता। Now people don't understand कि if I am sponsoring an event, I have to be here and there. I have to, pick up the shirts. इतना बड़ा venue है, आप अकेले भाग रहे हो, कभी आपने heels पहनी हुई होती हैं, कभी आपके बाल बहुत टाइट बने हुए होते हैं, कुछ होता है, you're a girl, you have multiple things going on. और आपकी जॉब है वहाँ मार्केट करना. Exactly, it's my job. I'm not doing it for myself. मैं अपनी personal branding करने के लिए stage पे नहीं गई हूँ. But Casey, एक बहुत famous influencer ने, she had 700,000 followers. She picked up the video that was posted online. She posted on her story, and she goes, she's very rude, right? I had the chance to smile at her. She did not smile back at me. Now, that one thing does not define me, right? That one thing, I might not have smiled back at you because I was busy, I was occupied, I had multiple other things to do. But उसने वो post कर दिया, and the moment she posted that, the reel went from 15,000 views to 60,000 views. That night I did not sleep. I was like, I am not rude at all. This is not me. Why are they, saying such stuff about me? I remember you posted on I LinkedIn. did post about it, but वो उससे पहले ही मैंने post कर दिया था। वो वीडियो बाद में वायरल हुई है। अच्छा. I still remember, मेरा पूरा हमारा जो WhatsApp ग्रुप है मेरे बच्चों के साथ, मेरी टीम के साथ, वो पूरे ग्रुप में उस रात ना सब हुस्ना are you okay? हुस्ना are you doing well? Because they know me. I am a very sensitive person. Like, if I'm not doing anything wrong to you, don't come at me like that, because I don't know what to do. I just became a public figure. I am not PR trained. I don't know how to tackle such issues. But yeah, खैर उस लड़की ने वीडियो हटा दी थी later, and I called her. I was like, dude, you're a woman yourself. Why are you? आपने कॉल मिलाई इसको? हाँ, मैंने कॉल मिलाई. I found her number. She was a student from some university. I found her number. I did not. One of my kid did. Ahmad did. अमाद ने मुझे उसका नंबर कहीं से भी ढूंढ के दिया. कराची में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में उसने कहाँ से मुझे उसका नंबर ढूंढ के दिया. उसने बोला है कि आप बात करें इससे. मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा, डूड, यू आर अ वुमन योरसेल्फ, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी?
तो शी वाज लाइक अगर आप मुझे पहले ही मैसेज कर देती तो मैं डिलीट कर देती. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू मैसेज मी. क्या? Yeah, I was like, what? Why? Why did you want me to message you? Like, you know, it's basic ethics. But anyways, that got sorted. And then the influencer who reposted the reel, I texted her also. I was like, dude, I'm sorry. It's not me. I literally went and apologized to her. I was like, you cannot judge me just because I did not smile back at you. I did not even see you. You know, अगर intentional होता तो आप बोलते भी फिर. But yeah, been there, done that. But I'm glad you handle it. Really I well. had to. Yeah. अगले दिन फिर ऑफिस जाना था. Okay. What's the riskiest thing you have told a boss and what happened next? यार with my current bosses, I don't think अभी मुझे इनके साथ कुछ risky लगता है because I say anything that I want to and they're like okay yeah whatever. I But remember you posted a screenshot where you said कि वो टाइम date- पे आना है ना. यू सॉ दैट स्क्रीनशॉट. हाँ तो मैं अपने मतलब मैं अपने बॉसेस को भी कहती हूँ और मैं बहुत ओपनली इस बात को प्रीच करती हूँ कि 9 to 5 culture is very 2000. You know, like get over that. As long as your work is getting done, that's all that matters. does that you get that done without Yeah, really, dude, you I'm know- working all the time. When I tell you I'm working all the time, I'm actually working all the time. I don't need to be physically in the office for me to be working because my work does not require me to be in the of office. course, of course. Right? बट जिनका काम ऐसा है जिनको ऑफिस में बैठ के उनके कंप्यूटर्स पे काम करना है उनके लिए ऑफ कोर्स 9 to 5 कल्चर काम कर सकता है. बट फॉर मी फॉर जेनजीज फॉर यू नो Like for पीपल the इन माई people जैसे टीम जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ, रील्स बना रहे हैं, यू नो लोगों से कम्युनिकेशंस रख रहे हैं, पीआर कर रहे वो हैं. रुकता आई भी थिंक नहीं है उनके काम। लिए ज़रूरी नहीं है. और मैं अपने बॉस को हमेशा बोलती हूँ, खैर मेरे बॉसेस स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी मेरे साथ, बट फिर भी मैं उनको हमेशा रिमाइंडर देती रहती हूँ एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द वर्क डन इट शुड नॉट कंसर्न यू इन एनी वे. बट या यू नो डेकोरम भी मेंटेन करना होता है ऑफिस का. Okay, So, of course, of course. वो मुझ पे ही सिर्फ रिलाई नहीं करता. एक बंदे की वजह से पूरा ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब होता है. सो आई एम गिल्टी. आई एम सॉरी बट या. Okay, how can a young employee push back without risking their job? Without risking their job, I think be respectful. That's one thing. Be respectful, be resilient, जब तक आपकी ईगो पे बात नहीं आ रही है, बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट पे बात नहीं आ रही है, आई थिंक जस्ट ट्राई एंड फाइंड अ बैलेंस. दैट्स व्हाट आई डू टू. ऑफ कोर्स आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप जितने अच्छे दोस्त हो काम करते हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, Communication. कम्युनिकेशन गैप होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं. लाइक मेरे बॉसेस जो हैं वो दुबई में हैं, दे आर बेस्ड इन दुबई, आई एम बेस्ड इन कराची. आई गो बैक एंड फोर्थ बट आई स्टिल एम इन कराची, आई वर्क फ्रॉम हियर. हाफ ऑफ माई टीम इज़ इन लाहौर एंड इस्लामाबाद. सो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जहाँ पे बैरियर्स होते हैं. यू नो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं बट लोकेशन बैरियर्स जहाँ होते हैं वहाँ पे आ जाता है कम्युनिकेशन गैप. तो आई थिंक बी रिस्पेक्टफुल. Okay. So what's the biggest red flag Gen Z should notice in interviews? Personal questions. Like, are you married? Are you dating someone? Are you know, like, what's your personal phone numbers? Anything that's personal that you don't want to share. But generally HR do ask about the marriage thing. Dating का भले ही नहीं पूछते. I mean, I don't know how that makes sense, honestly. I don't know. I mean, when I conduct the interviews, I don't I even think care. they want to understand how many dependents are there generally. Maybe. Yeah, but like, how does that matter? I mean, my capabilities are what you should know about. My relationship status, I don't think anybody should be interested in that. In corporate, at least. और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर मुझे चेक करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो मैं क्या चीज़ें देखूंगी? यार मैं पर्सनली उस कंपनी का नाम डालती हूँ लिंक्डइन पे और मैं चेक कर लेती हूँ क्या कमेंट्स हैं, क्या पोस्ट है. मैं पर्सनली ऐसे कर लेती हूँ. वहाँ और के एम्प्लॉयज़ क्या लिख रहे हैं? वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या लिख रहे हैं, और वैसे भी जिसने काम छोड़ दिया होता है वो कुछ ना कुछ डाल ही रहा होता है, वो कुछ ना कुछ कमेंट कर ही रहा होता है. तो आई थिंक इस तरह से मैं पर्सनली चेक कर लेती हूँ. मुझे खैर करना पड़ा नहीं है काफ़ी टाइम से, बट मैं पर्सनली इस तरह कर लेती हूँ. अगर किसी को वैसे चेक करना है तो आई थिंक बहुत एविडेंट होता है. आप जब भी किसी कंपनी में जाओ आपको पता चल जाता है उनका कल्चर कैसा है. द मोमेंट यू स्टेप इन, यू नो द वाइब्स ओवर देयर, the kind of people who are passing by, maybe they're smiling or not,
the body language itself. डरे हुए हैं. या डरे हुए नहीं डरे हुए, किस तरह काम कर रहे हैं, क्या हर वक्त हर कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ सिर्फ टाइपिंग कर रहा है, क्या हर वक्त हर कोई सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है. इस तरह के कल्चर से लोग बाउंड हो जाते हैं. इस तरह के कल्चर से मुझे नहीं लगता, अगर आप जेंजी को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर आप मुझे भी हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस तरह के कल्चर में काम नहीं कर सकती. मेरे लिए कमरे की लाइट्स भी मैटर करती हैं कि कमरे में वार्म लाइट्स हैं नहीं है, वाइट लाइट्स तो नहीं है. तो मैं खुद बहुत स्पेसिफिक हूँ इस मामले में. मेरे लिए तो खैर कल्चर वहीं से डिफाइन हो जाता है, लाइट वार्म है कि नहीं है. Okay, okay. What workplace rule makes absolutely no sense, or maybe which HR policy you'd like to remove from everywhere? From everywhere, I think attendance. I agree with that. You agree with that? वसीम तो कुछ ज़्यादा ही एग्री करेगा उससे कि अटेंडेंस होनी नहीं चाहिए. आई मीन हाँ. सो इट डिपेंड्स कि आपका काम कैसा है. अब जैसे ये वाला जो काम है जिसमें आप नेटवर्किंग करनी है, या जैसे लीड जनरेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, कंटेंट क्रिएशन है, वो फिक्स हो भी नहीं सकता. आपका दिमाग 5 बजे के बाद भी चल रहा होगा उस पर. यार मेरा दिमाग शुरू ही 3 बजे के बाद होता है. मुझे पता नहीं है लोग 3 बजे से पहले काम क्या कर रहे होते हैं. मतलब मैं सबको रिप्लाई भी 3 बजे के बाद ही करती हूँ मोस्टली, बिकॉज मैं इंटरनली पहले वो 11 से जो 3 तक का टाइम होता है मैं इंटरनली डिस्कशंस पे लगा देती हूँ. जो सामने बैठा है मैं उस पर फोकस करूँ. देन आई स्टार्ट यूजिंग माई फ़ोन. मुझे डॉक्टर ने अभी रिसेंटली बोला है कि आपकी स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए थोड़ा. अच्छा. मेरा स्क्रीन टाइम 11-12 घंटे है, विच इज़ इनसेन, विच इज़ क्रेजी. अब वो 11-12 घंटे मैं काम के लिए ही फ़ोन यूज़ कर रही हूँ. मेरा वर्क फ़ोन अलग है, मेरा पर्सनल फ़ोन अलग है. मेरा पर्सनल फ़ोन पे हार्डली 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है, बट वर्क फ़ोन पे 11-12 घंटे का टाइम है. तो मेरे डॉक्टर ने ही मुझे एडवाइस किया है कि थोड़ा कम करें. अब वो अटेंडेंस से मैं कैसे मेजर करवाऊँ कि सी आई एम ऑल्सो वर्किंग लाइक दिस. सो आई थिंक अटेंडेंस 2013 थिंग ही हो गई है, इसको हटा दें आप. Okay, okay. What's your thought on leaves? लास्ट कब लिए थे एनुअल लीव्स? यार मैं एनुअल लीव्स नहीं लेती, मैं पर्सनली नहीं लेती, बट आई डू इनकरेज दैट. Why is burnout treated like a personal weakness instead of a leadership failure? Do you think this is a leadership failure? यार आई थिंक अगर आपका, मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स अ पर्सनल फेलियर. बर्नआउट इज़ योर पर्सनल फेलियर इफ़ यू आर अनेबल टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ, बिटवीन योर वर्क लाइफ. तो आई थिंक वो आपके ऊपर है. आप यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. यू कैन ऑलवेज से नो टू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू. इफ़ यू आर मे बी, मैं बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड साउंड कर रही हूँ इस वक्त, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दे डिपेंड ऑन देयर सैलरीज, राइट. उनको सैलरी चाहिए होती है महीने की. दे हैव टू लिसन टू देयर बॉसेस, व्हाटएवर दे आर सेइंग इट हैज़ टू गो. बट आई फील लाइक कि अगर यू आर नॉट गोइंग टू बिकम द चेंज, then I don't think you'll be able to inspire or lead the upcoming generation, because the change starts with you, right? You need to become that change that you're seeking in your leader. So if you don't want to do anything, just say no to it. I mean, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? You'll get the warning, you'll get an HR meeting का invite आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? But अगर आप इतने अच्छे हो अपने काम में, आपके bosses को भी पता है कि you are irreplaceable, then I think it's on you. Very good. Have you ever been told you're too aggressive? Yeah. Huh? Yeah. Ask my assistant sometime, she'll tell you. I am very aggressive. I'm not aggressive. I'm very, like I told you, I'm very straightforward. I'm very outspoken. I have a lot of opinions. So it matters from actually person to person. कोई aggressive ले लेगा, कोई बोलेगा नहीं ये तो clarity है. She's just being very open and clear. यार क्लैरिटी ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता कि ऑफिस इन्वायरमेंट में आपको क्या क्लैरिटी चाहिए होती है. मुझे मेरा इस बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता अपने बॉसेस से या बच्चों को भी मुझसे, कि क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है. नो, यूज़ योर ब्रेन्स. आई यूज़ माई ब्रेन, एंड जो मुझे समझ आएगा मैं वही कर रही हूँ. आप भी वही कर लो जो समझ आ रहा है. आउटकम जो है वो फिर डिपेंड करता है अगर आपको सामने से क्लियर इंस्ट्रक्शंस आए थे, नहीं आए थे, क्या हुआ था. But there must be some other misconceptions about you. There are misconceptions are that I don't know, like internet के हवाले से misconceptions are that I'm very opinionated. I'm very stubborn. My ex-colleagues, they used to say this, that you're very stubborn, you don't change your mindset. That's not a misconception to some extent, but I still I feel like if you are giving me a very valid point, a very valid discussion, so I am going to change my mind. But if you don't have facts and figures, if you cannot show me कि ChatGPT ने ये बोला है, I trust ChatGPT, by the way. I trust ChatGPT with my life.
I'll die for ChatGPT. So if आप मुझे confirm कर दो ChatGPT के ये stats हैं, ये figures हैं, आप Google से confirm कर दो. What's the price you personally pay for speaking this openly? Yeah, the comments. The comments. You should check the comments under most of did. my posts. I did. आजकल एक अंकल हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे लिंक्डइन पे वो अपनी सेल्फीज पोस्ट कर रहे होते हैं अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अंकल को जाके क्या बोलूँ, आप क्यों कर रहे हैं ये मेरे कमेंट्स में अपनी सेल्फीज. बट या द कमेंट्स दे आर हॉरिफाइंग. At times I get scared because like why are you coming at me like that? It's a free world, open speech का ज़माना है, मैं क्यों नहीं अपनी बात बोल सकती. आप अग्री नहीं करते आप मुझे अनफॉलो कर दो, आप अग्री नहीं करते आप मुझे ब्लॉक कर दो. अब व्हेन आई टेल यू कि मेरे बॉसेस के पास मेरे लिंक्डइन के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, सही है, उनके अपर मैनेजमेंट कहीं भी होंगे, दोस्त होंगे, इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको लोग स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज शी पोस्टिंग, व्हाई इज शी पोस्टिंग दैट, दे डोंट इवन नो मी येट दे आर जस्ट सेंडिंग द स्क्रीनशॉट्स. अजीब फजूल बातें कर रहे होते हैं. तो ये एक साइड आइज बहुत आती हैं, गॉसिप कल्चर बहुत ज़्यादा है. आप अगर 100 लोगों की टीम में काम कर रहे हो, आपने शुरू उनके साथ किया बट आप आगे निकल गए हो, ठीक है, तो वो एक जो गॉसिप कल्चर बन जाए, कल्ट बन जाता है आपके अगेंस्ट. आप बोल रहे होते हो कि यार मैंने किया क्या है, व्हाट हैव आई डन, आई हैव डन नथिंग. बट corporate jealousy तो है ना, you can't deny that. I mean, if you're young, you're pretty, you know what to do, you know what you're doing, the eyes that you're gonna get, dude, yeah, you And can't compete with that. Also the kind of negative perception के आगे बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है वाली चीज़ के हाँ, दिनों के भाई मेहनत बहुत से बढ़ रही ये है. बहुत सुनते हो आप अगर आप लड़की हो, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, दे गिव यू द साइड आईज. दे लाइक यू आर 25, how have you achieved what you have achieved? How are you getting all these offers? How are you getting approached by these many people? What are you doing? जी. Right? You must be doing something shady, right? Oh, your boss is also young. Yeah, that makes sense. Oh, कुछ तो हो रहा होगा. मतलब आपके मतलब कितने कामचोर काहिल और अडराम होंगे. हाँ, तो ये देखो, ये नॉर्मल है. ये हमने खुद एज अ सोसाइटी हमने इसको पुश किया है. और ये सिर्फ मैं आपको लड़कों का नहीं बता रही हूँ, सबसे बड़ी दुश्मन आपकी लड़कियां हैं. लड़के आपको शायद समझ जाएं कि यार हाँ हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रही है. और लड़कियां जो हैं, दे विल नॉट मिस वन चांस टू पुट यू डाउन. दे विल नॉट मिस वन चांस टू जस्ट पुल योर लेग कि हाँ नहीं, क्यों, तुमने तो ये किया था, जी. अब तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो. वो आती है ना, आपके पास रील्स आ रही होती हैं काफ़ी, वो आप बहुत उनसे रेजोनेट कर सकते हो, उनसे आप रिलेट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ. आई नो दैट इज़ द ट्रूथ. इट्स नॉट जस्ट कि मेरे आज किसी कंपनी में जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसमें यह है. मैंने जितनी प्रीवियस कंपनीज में काम किया है, दिस वन कंपनी आई वाज टेलिंग यू अबाउट, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ थी, वहाँ लड़के थे ही नहीं, सिर्फ लड़कियाँ थी. एंड द काइंड ऑफ जेलसी, द कॉम्पिटिशन, द ग्रेप वाइन सिस्टम था वहाँ पे, वो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं. मुझे 9 months ऑफ थेरेपी लगे वहाँ उस जगह की जॉब का ट्रॉमा से रिकवर करने में, क्योंकि मेरी कोई बात सेफ नहीं है मेरे किसी कोलीग के साथ. मैं अपना ओपिनियन वहाँ फ्रीली शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बॉस का इतना इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, और सारी लड़कियाँ बॉस को इम्प्रेस करने में लगी हुई हैं. तो अगर मोस्टली जगहों का यही इन्वायरमेंट है, यही कल्चर है, तो लोग आपको भी यही समझेंगे. लड़कियाँ करती हैं बॉस के साथ, करती होंगी, मुझे नहीं पता, बट अगर कर रही हैं लड़कियां तो हर कोई आपके ऊपर भी यही आंख उठाएगा. नंबर बढ़ाने के लिए नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब हाँ ठीक है, नंबर बढ़ाओ, नंबर मैं भी बढ़ाती हूँ, काम से बढ़ाओ ना. हाँ काम से बढ़ाओ, मैं भी बढ़ाती हूँ नंबर. मतलब मेरे नंबर बढ़ाने का तरीका ये, आई नेवर से नो टू माई बॉस. दिस इज माई टैग लाइन एवरीवेयर यू आस्क माई टीम. बॉस ने कह दिया करना है तो करना है, दैट इज द रूल आई लिव बाय. मतलब मैं अपने बॉस को ओपिनियन ज़रूर दे देती हूँ, बट अगर उन्होंने बोल दिया करना है तो वो होगा. अब मैं वो कहीं से भी करके लाऊँ, कहीं से भी कुछ भी करूँ, वो मुझे करना है. बट इसके अलावा और तरीके नहीं है मेरे पास. Okay, okay. What's one truth Gen Z doesn't want to hear about themselves? Themselves, I think constructive criticism नहीं ले सकते हैं, मैं भी नहीं ले सकती. तो आई थिंक Gen Zs में ये प्रॉब्लम है. अगर आप उनको कोई अच्छे के लिए भी बात बता दो तो वो ऑफेंड हो जाएंगे बहुत जल्दी, कि मुझे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, पीछे से बोल देती जाके, ये कर देते वो कर देते. तो Gen Zs में ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, उसको कर सकते हैं, कवर हम कर सकते हैं. Okay. What's the most toxic policy that is disguised as discipline? Disguised as discipline यार, I think 9 to 5. वही बात, हाँ. वही बात जो मैं कब से कर रही हूँ, और मैं अपने लिंक्डइन पे भी हर वक्त ये बात कर रही होती हूँ
कि 9 to 5 नहीं, आप इतना रिस्ट्रिक्ट ना करो किसी को. किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो डर रहा है, मैं बॉस को कैसे बताऊँ? मेरी गाड़ी लग गई है, मैं मैकेनिक के पास लेके जाऊँ कि मैं ऑफिस जाऊँ? तो आपको डरना नहीं चाहिए. आप अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा करो कि लोग आपसे झूठ ना बोलें. हाँ लोग आपको सच बोलें, जो भी करें वो सच बोल के करें. उनको डर ना लग रहा हो. मतलब अभी वेरी रिसेंटली माई असिस्टेंट वाज लाइक, हुसना ये XYZ छुट्टी मांग रहा है 1 हफ्ते की. मैंने बोला क्यों क्यों छुट्टी चाहिए? कह रहा अच्छा चलें 1 दिन की दे दें. मैंने कहा क्या करना है 1 दिन, बता, रीज़न दे दो. तो उसने मुझे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न दिया. एंड व्हेन आई टेल यू कि मैंने उसको दिया है ऑफ, उसने मुझे रीज़न दिया, मेरे कज़न सारे हम पूरी रात जागेंगे, और पूरी रात जागेंगे तो मैं सुबह ऑफिस नहीं आ सकता. एंड आई वॉज हैप्पी. माई असिस्टेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मी गिविंग हिम एन ऑफ, बट मैंने बोला ले लो, ऑफ ले लो, जाओ सुबह 2 बजे उठो, 2 बजे आ जाना, 3 बजे आँख खुले 3 बजे आ जाना, जब आँख खुले ऑफिस आ जाना, बट ऑफ ले लो. तुम अपने जाके कजन्स के साथ वो मिस नहीं करो. तुम्हारा एज ऐसा नहीं है, तुम क्यों मिस करोगे? तो योर कोलीग्स, योर टीममेट्स शुड नॉट बी लाइंग टू यू. आई डोंट अप्रिशिएट द कल्चर जहाँ पे लोग इतना डरे हुए हैं चले आपसे. अगली बार भी सच बोलेगा ना फिर. हाँ, वो अगर सच आपने- बोलेगा. और उस इसके अंदर इतने गट्स थे, उसने मुझे सच बोला. वरना कौन आपको आके और बोलेगा? अगर आप डिस्करेज कर देती हैं, आपका कोई भी एक्शन उसे डिस्करेज कर दे, हाँ, तो वो फिर नहीं बोलता अगली बार. लेकिन वो अगली खैर बार नहीं मेरे बोलता. बच्चे ऐसे, वो फिर भी बोल ही देते हैं. उनके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है. मैं उनको मना भी कर दूँ, वो फिर भी बोल देंगे. Okay. Last question about LinkedIn. The people who want to grow their LinkedIn or personal brand, let's say, what is the piece of advice for them? यार बी कंसिस्टेंट. सही है. एंड आई थिंक पोस्ट रेलेवेंट कंटेंट. आई हैव सीन पीपल पोस्टिंग इस्लामिक कंटेंट, लाइक हज उम्रे की पिक्चर्स लगा रहे हैं, खाने काबा की पिक्चर्स लगा रहे हैं. आई लव दैट फॉर यू, बट कीप दैट फॉर यू ऑन इंस्टाग्राम. आई ऑल्सो पोस्ट लॉट ऑफ स्टफ जहाँ पे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए, यहाँ डालना चाहिए, बट दैट इज़ मी डूइंग थिंग्स विद माई टीम. इट इज़ स्टिल रेलिवेंट टू लिंक्डइन. मैं अपनी टीम ग्रो कर रही हूँ, मैं कल्चर दिखा रही हूँ अपनी कंपनी का, मैं जो कल्चर खुद मेंटेन कर रही हूँ मैं उसे पोर्ट्रे कर रही हूँ अपने लिंक्डइन पे. सो आप फाइंड योर नीश मे बी, and if your niche is fun, just find people who are relevant to that. Find content that is relevant to people in your audience. Yeah, I think be consistent. I have been consistent for last 1.5 years, and now I have more than 51,000 followers. Took me a lot, day and night. I used to at one point, अभी 2 हफ्ते पहले ऐसा हो रहा था कि मुझे ख्वाब में LinkedIn content आ रहा था. मैं अगले दिन अपनी असिस्टेंट के पास गई. सो माई असिस्टेंट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक हर एंड आई टेल हर एवरीथिंग. मैं उसके बाद अगले दिन गई, मैंने कहा तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? मैंने बोला मैं रात में सो रही थी, 7:04 पे मेरी आँख खुली है सुबह के. एंड इफ़ यू नो मी, यू नो आई कॉन्ट वेक अप अर्ली. 9 AM इज़ अ नो गो फॉर मी. आई कॉन्ट वेक अप एट 9 AM. तो मैं 7:04 पे उठी हूँ, और मैंने अपने नोट्स में लिखा है कुछ आइडिया, और अब वो ऐसी ज़बान में लिखा हुआ है कि वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने लिखा क्या है. सो और वो आज पोस्ट होना है, बाय द वे वो स्केड्यूल हुआ हुआ है, तो वो आज पोस्ट होगा. तो वो कुछ अम्मा ने, मतलब माई मॉम शी कीप्स टेलिंग मी कि यू नीड टू narrow down your friend group. So it was something about that I had to post on LinkedIn, even though it's not necessarily related to what should be on LinkedIn, but I still somehow made it, and made it relevant to So LinkedIn. one thing that I've learned about LinkedIn abhi recently is it is more working like a Twitter. Yeah. The way we used to tweet, 2-liners, 3-liners. अभी आप फेसबुक पे भी थोड़े से आ रहे होंगे. फेसबुक पे आते थे ना, ईद मुबारक के पोस्ट आ रहे होते थे. अब वो थोड़े टाइम में आएंगे लिंक्डइन पे. हाँ, of Because course, ये of course. नहीं, ये हो गया है. मेरे आप देखें, आपका एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज हो गया. मेरे एल्गोरिथम पे पाकिस्तानी तो कोई आ ही नहीं रहा है. मेरा एल्गोरिथम स्विच हो गया. सिर्फ इंडियंस है मेरे एल्गोरिथम पे, हैप्पीली सो. आई लव देयर कंटेंट. दे आर मेकिंग एन अमेजिंग कंटेंट, जो भी सारे इंडियन क्रिएटर्स कर रहे हैं. और मेरे कंटेंट पे आता है ब्रिटिश कंटेंट आता है मेरे एल्गोरिथम पे. देयर इज ब्रिटिश Algorithm कंटेंट. change हुआ है, and also the way algorithm reciprocates the energy. क्योंकि अब पहले होता था 2.5 लाख impressions, 4 लाख impressions, 5 लाख when I started LinkedIn. अभी no matter what you do, you'll throw, चले बहुत कोई 6 महीने में लग गया तो 2-3 लाख चला जाएगा, वरना वो 50,000 impressions, 70,000 impressions. 50,000 70,000 में कहाँ हो रहा है? अब तो वो भी नहीं हो रहे हैं. मतलब अगर मैं अपने Have you experienced this? I have. I've also openly commented about it. I've not made a post about it because it does not concern me. Like my reach going down, it doesn't necessarily concerns me because I am not posting for the reach. I'm not posting for any return. I'm posting whatever I want to post. I have a platform. I'm trying to utilize my platform that I have. I have people who follow me. People जो engage भी करते हैं साथ साथ. engage करते हैं, और उसके अलावा my DMs, they are full of positive people.
when I tell you, they follow me on Instagram, they follow me on LinkedIn, and they hype me up so much. I just love that part. I'm not doing it for the reach and for the audience. मुझे अपना कोई cult नहीं बनाना है. जो भी थोड़े बहुत followers हैं जो कि आप मुझे support करते हैं, you know, encourage करते हैं, I'm just posting content for them. And more than that, I have a platform to say anything that I course. want to I say. love that. I love yeah, that. I just need the platform. I am going, like I told you, I am just waiting to hit 100,000. I'm going to use the platform in another, you know, another ways. Yeah, yeah. So yeah, So I am hoping you touch 100,000 soon, and more than that also. I wish you a very good luck for that. thank you so much. One last piece of advice for the people who are watching you, people who admire you. What is your message? My message would be yourself, and you don't have to change yourself for people unless, you know, आपके betterment के लिए ही कोई बात हो रही है. अगर आपके betterment के लिए नहीं है, लोग आपको challenge कर रहे हैं, आपको belittle कर रहे हैं for whatever reason in terms of, you know, corporate culture, आपको encourage नहीं कर रहे हैं, then that's not the place for you. You are going to find somewhere else जहाँ पे आप जाके अपने आप को settle कर लेंगे, लोग आपको appreciate करेंगे, आपके ideas appreciate करेंगे, आपके opinions appreciate करेंगे. You don't have to settle. Don't settle. Just outgrow your Wow. environment, Wow. outgrow your culture. Wow. Find places and people that resonates with you. Yeah. Just दूसरों के साथ adjust करने में अपने आप को मत खो दो आप. Lovely. Lovely. Yeah. Very good advice. I really appreciate it. Thank you so much, Hosna, Thank for you being so with much, us. Maha. Thank you so much.